Hello friends, as we move further in the structure of tapetum, it is of two kinds, and that is amoeboid and glandular. Here, furthermore, we are going to discuss about the sporogenous mass that is present within the anther. These cells are somewhat different than the others because these cells having a dense cytoplasm with a prominent nucleus and large sized. So these cells it undergo the process of meiosis and they are able to produce the spores. And here the spores producing cells is known as the MMC microspore mother cell or PMC pollen grain mother cell. Okay, so here in this one, as you know, this microspore mother cell MMC undergo the process of meiosis. So in the starting phase, they all are diploid. They are forming a pollen grains. These all are haploid. And now these all pollen grains, which is haploid, it divide mitotically when it is set on the surface of the stigma, and it is divided into two cells, and both the cells which is arising from the pollen grain, that is known as the male gametes. Okay, so here I would like to share this process in this way. Here there is a structure of the anther in which there is a presence of the MMC. Okay, it undergo the process of meiosis. So at the one meiosis it produces two cell, after second meiosis it produces four cells. So automatically one cell it is going to be one MMC, it gives a four cell. These all four cells are fused together and each of them is served or behave as the individual pollen grains. These all cells or all pollen grains they are bind with each other due to the secretion of this MMC cell, microspores mother cells or sporogenous tissue, and that is known as the callus. कैलस के सिक्रेशन की वजह से ये बने हुई चारों चार पोलन ग्रेन है, इट इज़ रिमेन इंटैक्ट विद ईच अदर. ओके, now what I'm saying to you, कि when this pollen grain is stick on the surface of the stigma, at that time ये जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस itself it is haploid because it is formed at the end of the process of meiosis. So this haploid nucleus है, ये haploid nucleus माइटोटिक प्रोसेस थ्रू डिवाइड होता है और माइटोसिस प्रोसेस थ्रू ये हैप्लॉइड सेल से ऐसे दूसरे हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है. तो माइटोसिस प्रोसेस में से एक सेल दो सेल में फॉर्म्ड होते या फिर कन्वर्ट होते हैं और बने हुए दोनों सेल है और न्यूक्लियस है उसको वी कैन से इट इज़ अ मेल गैमेट्स. दिस प्रोसेस इज अकर मैनी प्लांट्स के अंदर. This process is occur before the anther is going to be mature or pollen grain is released, or in many plants when this pollen grain is set on the surface of the stigma, or at the time of germination when pollen tubes arise from the style. At that time this process of mitosis is occur. So when the pollen grain is shaded or it is going to be released from the anther, at that time actually it having a two nucleus, and both these nucleus are known as the male gametes, and both are formed from the mitotic process. Okay, so let us move with the further theory that is showing what here exactly. So from MMC pollen grain formation, that is known as the microsporogenesis, and from the pollen grain male gamete formation process is known as the microgametogenesis, because at the end of the process you will get the microgametes. So this process is known as the microgametogenesis. Okay, so exactly how this process is occur, which is showing here. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसे डिवाइड होते हैं, तो मियोसिस प्रोसेस थ्रू डिवाइड होते हैं. तो दो मीन्स थ्रू होते हैं, वन इज़ द सक्सेसिव एंड सेकेंड इज़ द साइमल्टेनियस. In successive means both the processes occur togetherly, means here the karyokinesis is followed by the cytokinesis. matlab nucleus is also divided along with the cytoplasmic division. So by this means you will get a isobilateral
kind of the pollen grain. Here this example is monocot, or it is also seen in most advanced angiospermic plants. Okay, चलो simultaneously in that first the nucleus is divide, तो दोनों में ही K1 K2 लिखा है, मतलब दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2 इज अकर, मतलब न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी डिवाइड बट साइटोप्लाज्म इज नॉट. In a further one, after the nuclear division there is a division of the cytoplasm. So the C1 and C2 is occur, matlab cytoplasm is also divide, and here they are forming the clusters of the pollen grain, and that's look as a tetrahedral. Okay, so a is a most common type simultaneous type of the MMC में से pollen grain formation is a most common type one. Okay, furtherly see in this one, here the formation of pollen grain hai, and there the arrangement of the pollen grain is different in different species. Here in a linear form it's showing the old formed pollen grain is arranged in the form of the line. In a T shaped is arranged in the form of T shaped. In the third diagram it is look like a decu set types of the pollen grains, so it's showing a arrangement of it. Hope so it is very clear from starting of the sporogenous tissue to the pollen grain. Now let us see this one, एरिस्टोलोसिया एलिगन्स, ये एग्जाम्पल है. तो आई रिपीट इट अगेन, एरिस्टोलोसिया और लोकिया एलिगन्स, in that it form all 5 types of the tetrahedral. So यहाँ पे many times it happen that many pollen grain which is formed, it is not segregate or not shed or not separate from each other, but it remain intact with each other with the help of this callus. So is callus है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने प्रोड्यूस किया हुआ है, बीच में सेंट्रलाइज पोर्शन है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बनी हुई पोलन ग्रेन है वो सभी पोलन ग्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, क्योंकि उसके बीच में ये जो लेयर है डार्क लेयर दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कैलोस, और ये कैलोस है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजिनियस. ओके, और ये डिज़ोल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेपेटम. तो टेपेटम ये जो कैलोस सिक्रेट किया हुआ है उसको सिक्रेट, टेपेटम उसको डिज़ोल्व करता है बाय द सिक्रेशन ऑफ कैलस. तो कैलस इज़ द एंजाइम विच इज़ सिक्रेट फ्रॉम द टेपेटम. कैलस है वो एंजाइम है जो टेपेटम ने सिक्रेट किया है, एंड कैलोस है वो पोलन ग्रेन को इंटेक्ट करने के लिए होता है, एंड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजिनियस और माइक्रोस्पोर सेल्स. ओके, सो यूल गेट इजीली अबाउट. चलो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ़ पोलन्स आर नॉट सेपरेटेड, क्योंकि उसके अंदर कैलस है जिसके दे आर रिमेन इंटैक्ट विथ ईच अदर, तो सच पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज द कंपाउंड पोलेंस. राइट, इन एग्जाम्पल है कंपाउंड पोलेंस का, स्पेशली आपको याद रखना है टाइफा है, जंकस है, जेट्रोफा है. इन दैट अपने को कंपाउंड पोलन देखने को मिलेगी, दैट ऑल आर इंटैक्ट और रिमेन इंटैक्ट. ओके, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन द साइपर्सिल, इट इज़ शोविंग इन अ साइपर्सिल, जैसे कि 1 MMC है. ओके, तो इट गिव्स द 4 पोलन, तो यहाँ पे 3 इज़ गोइंग टू बी जनरेट एंड ओनली 1 इज़ रिमेन अ फंक्शनल. ओके, द नेक्स्ट इज़ द पोलीस्पोरी. पोलीस्पोरी, पोली मतलब मैनी, स्पोर्स मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्पोर. सो हियर एक से ज़्यादा अगर पोलन है वो टेट्राड में से, एक टेट्राड में से एक से ज़्यादा पोलन है वो मैच्योर होती है, तो इसको हम लोग पोलीस्पोरी बोलेंगे. इफ़ मोर देन 4 पोलन्स इन अ 1 टेट्राड, एक टेट्राड के अंदर एक से ज़्यादा पोलन ग्रेन होगी तो उनको क्या बोलेंगे, पोलीस्पोरी. यहाँ पे पोलीस्पोरी का एग्जांपल है कसकटा. ओके, जो कसकटा के अंदर 11 माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन 1 टेट्राड. Okay, next one, as I told you before, polonium. What is this polonium?
कभी कभी क्या होता है, जो पोलन ग्रेन प्रोडक्शन होता है, दैट ऑल प्रोडक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन है दैट एग्रीगेट टू फॉर्म अ कंपोजिट स्ट्रक्चर। वो सभी पोलन ग्रेन एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर के अंदर भरी होती है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहती है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पोलिनियम। ओके, सो ये पोलिनियम जैसा स्ट्रक्चर आपको किस में देखने को मिलेगा? कैलोट्रॉपिस, मिल्कवीड एंड ऑर्किड्स। कैलोट्रॉपिस, मिल्कवीड एंड ऑर्किड्स में आपको पोलिनियम देखने को मिलेगा। आई रिपीट इट अगेन, मैनी टाइम्स इट हैपन दैट जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है, इट रिमेन in the pouch like structure or sac like structure, and that structure is known as the pollinium. Okay, the next one is the pollen grain that is differentiate to form embryo sac like structure. Okay, and in it's showing a Nemack phenomena in hyacinthus. Okay, तो हम लोग जब वीडियो लाइव वेबएक्स करेंगे तब मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ तक आपको लिख लेना है। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन थ्योरी जो कंटिन्यूएशन में जा रही है। चलो, ये याद रखना है आपको। मेल गैमेटोफाइट विथ लिस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ओके, इट इज़ अ वेरी important one and that you have to note. ओके, हम लोग पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को अभी स्टडी करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और ये अभी की बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि भाई स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप के बारे में लिखना था, उसके 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो पोलन ग्रेन ऑलमोस्ट स्फेरिकल और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर होता है। पोलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ओके, और आउटर लेयर है वो रेजिस्टिव होता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इनर है दैट इज़ हैविंग अ सेल्युलर कंटेंट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। स्पोरोपोलिनिन है वो एकदम स्पेशल लेयर होता है। चलो देखते हैं। वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को स्पोरोडम बोलते हैं क्योंकि स्पोर को कवर करने वाला डम मतलब लेयर, तो स्पोर को कवर करने वाला डम और लेयर दैट इज़ नॉन एज द स्पोरोडम। इट हैविंग अ 2 लेयर, आउटर एंड इनर। आउटर को हम लोग एक्साइन बोलेंगे, इनर को इंटाइन बोलेंगे। एक्साइन स्पेशल काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस फैटी सब्सटेंस का बना होता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोपोलिनिन। ओके, किसके टुवर्ड में इट गिविंग रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस उसका मतलब है कि सालों तक वो प्रिजर्वेटिव कंडीशन में हम लोग उसको संभाल के रख सकते हैं या फिर वो डैमेज ना हो, इसके लिए पोलन ग्रेन के ऊपर ये कवरिंग होता है। और इसी बेसिस पर आप लोग प्लांट का स्टडी भी कर सकते हो। तो प्लांट का एक मिनिएचर फॉर्म है जिसको आप लोग फॉसिल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही बहुत साल पुरानी जो पोलन ग्रेन है उसको भी प्रिजर्वेशन या फिर यू कैन से कि भाई वो प्रिजर्व्ड हो सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ सर्व्ड एज अ फॉसिल। यहाँ पे नो एंजाइम नोन टिल नाउ विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, मतलब कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक मीडियम, हाई अल्कलाइन कंटेंट, ये सभी चीज़ें हैं वो स्पोरोपोलिनिन को क्या नहीं कर सकती, डीनेचर नहीं कर सकती है। ओके, देन द इनर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ इंटाइन, इट इज़ अ कंटिन्यूअस लेयर एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज, राइट। चलो, एक्साइन को हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई एक्साइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हियर you are clearly see this one. Exine is divided into 3, inner, middle and outer layer. जो inner layer होता है वो continuous layer होता है and उसको foot layer बोलेंगे। middle layer discontinuous होता है और उसको बोलेंगे baculate layer, and outer layer discontinuous होता है और उसको बोलेंगे tectum, or you can say it's having a ridge and spines on its surface. Okay, so exine itself, it is made up of 3 layer, inner, middle and outer. outer जो हम लोगों को माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देता है वो rigid और having a ridge on its and having a spines on that, and that is a tectum. मिडिल लेयर होता है वो भी डिसकंटिन्यूस होता है एंड दैट लेयर इज़ नॉन एज द बैक्यूलेट, एंड द इनर लेयर दैट इज़ अ कंटिन्यूस एंड दैट्स नॉन एज द फुट लेयर। ये जो टेक्टम होता है इट्स हेल्प इन द स्कल्पचरिंग ऑफ अ पोलन ग्रेन, मतलब इट्स गिव प्रॉपर शेप टू द पोलन ग्रेन। यू कैन से स्कल्पचर मतलब समझते हो कि हम कोई पत्थर नहीं ऊपर जैसे कि अपने ने
वगैरह मतलब तोड़ के उसको जो बनाया हुआ है जिससे उसका प्रॉपर शेप वगैरह दिखाई देता है, तो that is due to the tectum. Okay, and my dear students, there is a presence of the pore like structure on the pollen grain, and that is known as the germ pore. और ये germ pore के ऊपर है वो एरिया कि जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ से पोलन ट्यूब अराइज हो सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा. यू हैव टू मेक अ श्योर और क्लियर आइडिया अबाउट दैट. फिर से आई से इट कि जमपुर और जम फरो इज़ द एरिया विच इज़ प्रेजेंट. मैं बताती हूँ कैसे इट्स हाउ इट्स लुक. सपोज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. यहाँ पे अपने ने बताया कि ओके दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, और यहाँ पे सम पार्ट ऑफ इट इट नॉट हैविंग अ चलो सपोज़ ये पोलन ग्रेन है. ओके, और ये पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ पे एक्साइन नहीं है, इट्स रिमेन एम्प्टी वैकेंट स्पेस, वो एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जम पोर या जम फरो बोलेंगे. ये जम पोर और जम फरो की जहाँ पे एक्साइन नहीं होता है वहाँ से पोलन ट्यूब अराइज हो सकती है. ओके, तो जम फरो और जम पोर के जहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है वहाँ पे एक्साइन नहीं होगा, उसकी वजह से वहाँ से ईज़िली पोलन ट्यूब अराइज हो सकती है. जम पोर और फरो जितना जो भी उसके सरफेस पे होता है उसके बेसिस पर पोलन ग्रेन के डिवीजन है. मोनोकोप्लेट का मतलब है यहाँ पे एक ही जम फरो है. बाइकोप्लेट का मतलब है यहाँ पे दो जम फरो. ट्राइकोप्लेट मतलब यहाँ पे तीन जम प्लेट्स वगैरह है, वो जम फरो है वो प्रेजेंट होती है. मोनोकोप्लेट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन मोस्टली सीन इन अ मोनोकोट. बाइकोप्लेट एंड ट्राइकोप्लेट मोस्टली सीन इन द डाइकोट्स. यहाँ तक नोट्स में आप लोगों को लिखना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आप लोगों को ऑल एलेबरेट करूँगी अबाउट द इंटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन. यहाँ तक का आपको नोटबुक में कम्प्लीटली लिख देना है. ओके.